لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع ماشاءاللہ 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 بہت پانچوں شکریہ۔ کے نام بتا دیجیے گا ایک بار۔ پانچوں کے نام ہے رضا اعتذار، ان کا تعلق تھا لاہور سے، محمد رضا جعفری جن کا تعلق ہے کراچی سے، حافظہ بشرا ریاض جن کا تعلق ہے لاہور سے، نیہا خان جن کا تعلق ہے کراچی سے، اور صباحت صبور خان جن کا تعلق ہے لاہور سے۔ آج ٹیم نظامی کے پانچوں کنٹیسٹنٹ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کیا۔ اور میں تو دیکھتے ہیں بڑا خوش ہوں کہ الحمدللہ اسٹرانگ نظر آ رہا ہے اچھا ہے، باقی ججز بتائیں گے ہمارے کہ وہ کن کو آگے لے کر چلیں گے۔ حسن بھی ویسے تو ماشاءاللہ آپ نے تیاری بہت اچھی کرائی ہے اور بہت اچھے پڑھنے والے یار کیا باقی تیاری کرا رہے ہیں؟ ہمیں نہیں ٹائم مل رہا ہے اپنی ٹیم کو تیاری کرانے کا، آپ کرا رہے ہیں کیا ٹائم؟ نہیں بس میں نے اتنا کہا ہے کہ اچھا یہ جذبے غصہ سے ہے کہ یہ خوشی ہے؟ یہ کیسا ایکسپریشن ہے؟ مکس ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ غصہ اس لیے کہ ہمیں تو ٹائم نہیں دیا رہا ہماری ٹیم صابری کے نام کی تیاری ان کرانے کو اتنا ہی ٹائم دیا جا رہا ہے جتنا آپ کو دیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ٹھیک ہے پھر ہاں کوئی اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر نہیں خوشی ہے۔ اور غم کا مشر میل ہے۔ جی 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 یہ پتہ ہے یہ آپس میں کمپٹیشن کا جو ایک ہوتا ہے نا، ہیلدی کمپٹیشن میں آپس میں ایک جیلسی، یہ وہ نظر آ رہی ہے مجھے۔ جی جناب فرحان بھائی، امجد بھائی، ریحان بھائی، آپ لوگوں کو ٹائم چاہیے فیصلہ کرنے کے لیے؟ ہم نے فیصلہ کر لیا۔ یہ تو فیصلہ مطلب باپو فیصلہ نہیں سنائیے گا، کمنٹ بتا جی دیجیے گا۔ یہ پہلے میں صباحت سے شروع کروں گا۔ لوح بھی تو قلم بھی تو انہوں نے پڑھا، آواز بہت زیادہ ناک میں جا رہی تھی اور بہت زیادہ پریکٹس نظر نہیں آ رہی تھی ان کی، ظاہر اچھا فیل نہیں آ رہا تھا۔ نیہا نے بہت فارمل پڑھا ہے، جیسے مقابلہ ایسا لگا تھا عام محفل میں بیٹھی ہیں نعت پڑھ رہی ہیں، مقابلے وہی نعت نہیں پڑھی انہوں نے۔ تیسری بشرا ریاض جو لاہور سے ہیں، انہوں نے کلام میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، تو یہ کلام کا بیچ کا شعر ہے، یہ انہوں نے یہاں سے شروع کیا۔ جی ایک تو انہوں نے غلطی کی ہے، یا ستائی پہلا شعر نہیں ہے، بہرحال دوسرا ہم نے سن ہی نہیں سکے تو کیونکہ ججز نے فیصلہ اس وقت اشارہ کر دیا تھا، تو فیصلہ جو ہے وہ سب مل کے انشاءاللہ امجد بھائی اعلان کر دیں گے آخر میں۔ رضا اور محمد رضا انہوں نے دونوں نے بہت بہتر پڑھا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک کمنٹ، باقی سب جو انہوں نے باتیں کہی ہیں بالکل صحیح ہیں، دیگر پڑھنے والوں کے لیے دو لوگوں کے لیے ایک کے لیے میں کمنٹ دوں گا۔ رضا کے لیے میں نے یہ بس یہ ان کو ایک مشورہ دینا ہے کہ آپ نے کلام تو اچھا پڑھا ہے لیکن آپ نے اسکیل جو ہے وہ تھوڑا نیچے رکھ لیا تھا۔ اگر اسکیل کو تھوڑا سا بڑھا کر، سور کو تھوڑا سا بڑھا کر رکھتی تو یہ کلام اور بہتر ہو سکتا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آئندہ بیٹا، آئندہ جب آگے بڑھی تو فٹا اپنے پاس رکھنا اسکیل، ٹھیک ہے؟ مارنے کے لیے یہ ایک استاد نے ڈانٹا ہے بیٹا، تو یہ ایک ان کی تاکید سمجھنا، تلقین سمجھنا کہ جب ٹیچر ڈانٹتا ہے یا ٹیچر، ہر ٹیچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب سمجھا کرا ہوں۔ سمجھا جاؤ۔ جب جس انداز سے میں بات کروں، مذاق کروں یا ڈانٹوں تو وہ اس کا مطلب سمجھا کرو۔ میں سب سے پہلے تو چاہوں گا کہ یہ جعفری صاحب ذرا آگے آ جائیں ماشاءاللہ۔ محمد رضا جعفری جی ان کو میں اس لیے آگے نکال رہا ہوں کہ جو رضا نے نعت پڑھی وہ ایسے راگ میں پڑھی کہ اس کے بعد پڑھنا، اور جس راگ میں یہ پڑھ رہے تھے اس راگ سے وہ راگ بہت ٹچ ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے راگ پہ ہی رہے، اور وہ کیونکہ سر پہ چڑھ گیا تھا، جب رضا نے وہ راگ پڑھا تو وہ سر پہ چڑھ گیا تھا، اور بہت ہی پیارا جعفری صاحب۔ تو میں آج کراچی سے جعفری صاحب کو آگے بھیج رہا ہوں، اور کیونکہ ججز
माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि जजेस ने कहा कि रिदा ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, तो जो दूसरी आगे और जाएंगी तो वो रिदा हैं लाहौर से जो हैं। अरे रिदा आगे आ जाइए बेटा, एक स्टेप रिदा आगे आ आप जाइए। कौन सी है बेटा? रिदा व्हाइट कपड़े वाली वाली, मेरे जी। ख्याल में। आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आओ। आगे आ जाइए, अभी 2 लम्हे में आ जाइए अच्छा, मतलब थोड़ा सा लेट पहुंचना जी, हमारे। थोड़ा सा। जी बिल्कुल। अरे सुन के आगे आओ, ये बात, ये शाबाश। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये 2 बच्चे हमारे साथ मुकाबले में आगे बढ़ रहे हैं। अब ओवर टू हसन। अच्छा, ये फिर मुबारकबाद का मुस्तहिक भी होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 इनिंग्स में 4 खिलाड़ी आगे मुबारक हैं। हसन मियां, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। और रिदा गुड़िया, आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद इस मुकाबले में आगे बढ़ने के लिए। आप और चंदा, आप दोनों को। जो हमारी बकिया 2-3 कंटेस्टेंट्स हैं जो इस मुकाबले में आगे नहीं जा रही हैं इस साल, उनके लिए अगले साल की ये थोड़ा सा मशवरा बड़ी बहन का समझ के कि अगले साल जब आप आए तो भरपूर तैयारी से आए, क्योंकि ये मुकाबला अब और सख्त तरीन होता जा रहा है। जो 2 कंटेस्टेंट्स आगे बढ़ रहे हैं वो तैयारी पकड़ें। और रिदा, तुम तो पैकिंग कर डालो, अब आ जाओ कराची फटाफट। कराची वाले तुम्हें याद कर रहे हैं। क्या भाई, कराची वाले बुला रहे हैं रिदा को कि नहीं? बहुत शुक्रिया जी। क्या कह रहे हैं अहमद? जो बोलिएगा जी। और यहाँ पे जाने रहमत का हुआ फैसला। थोड़ी देर बाद हम बढ़ेंगे नमाज असर की तरफ इंशाल्लाह। जो भाई हमारे यहाँ पर मौजूद हैं वो जाके वजू कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे बाजमात नमाज असर अदा की जाती है जी। इनको ऑडियो ओनेक की तरफ से और उन दोनों को भी ऑडियो ओनेक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। थैंक यू अमजद भाई। माया खान 2 और यहाँ पर 3, चलो 3। और ये हमारे आपस के चुटकुले हैं, आप लोग परेशान ना हुआ करें। हम लोग इस तरह के, अरे ये मक्खी तो हटाओ यहाँ से। अभी आए वक्फे के बाद हम वापस आते हैं। एक बार फिर ख़वातीन हज़रात आप लोग करते हैं खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ATV और A+ के व्यूअर्स जो हमें सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर रहे हैं, और आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, आप हमारे साथ हैं रमज़ान इश्क एंड नशरियात, रमज़ान मुबारक के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन। नमाज असर बाजमात पढ़ाई जा रही है। इस वक्त रेहान भाई इमामत कर रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात एक ऐसी बहन से कराते हैं जिनके शौहर के इंतकाल के बाद उनके माली हालात बहुत खराब हो गए। जो कुछ था वो शौहर के इलाज पर खर्च कर दिया। औलाद कोई नहीं। लोगों की इमदाद और सिलाई कढ़ाई से खाने पीने का कुछ इंतजाम हो जाता है। हमारी बहन का नाम शाहीन बेगम। अस्सलाम वालेकुम। करीब कर लीजिएगा। कैसी हैं आप शाहीन बेगम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शाहीन है। मेरे शौहर को हेपेटाइटिस हो गया था। 4 साल उनकी तबीयत बहुत खराब रही। जो हमने जमा करा था अपने लिए कि हमारी औलाद नहीं है, कि चलो कोई हम घर वाले लेके डाल देंगे, उसी से हमारा कोई सहारा बन जाएगा। सही। मगर ऐसा नहीं हुआ कि मैंने चलो इनकी तबीयत खराब है, जो कुछ था मेरे पास जमा पूंजी पूरी उन पे लगा दी। मैं अच्छा। तबीयत सही हो जाएगी तो फिर और कमा लेंगे। हाँ जाहिर है, तबीयत ठीक हो जाए तो इंसान यही सोचता है कि एक दफा तबीयत तो सही हो जाए। बस मैडम, इतनी उनकी हालत खराब थी कि मैं हॉस्पिटल में जाती थी, इस जगह से दूसरी जगह उन्हें कर दिया जाता था। मैं अकेली, ऐसा लगता था कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ऐसे ढूंढती फिरती थी चारों तरफ। मारू के दीवान के ना पहले रास्ते भी नहीं पता थे मेरे को। कब हुआ है उनका इंतकाल? कब हुआ है? 4 साल हो गए। 4 साल। 4 साल से कैसे आप गुजारा कर रही हैं? क्या कर रही हैं? कहाँ रह रही हैं? किसके साथ रह रही हैं? मैं अपने ससुराल वालों के साथ। अच्छा, ससुराल वालों के साथ ले रही हैं। माशाल्लाह। बेटा सामने से नहीं आते, पीछे से आते हैं लाइव में। हाँ, ससुराल वालों के साथ। एक कमरा दिया हुआ है उन्होंने। उनकी बहुत मेहरबानी जो रखा हुआ है। बड़ी मेहरबानी, मोहब्बत वाले। आपके साथ कौन आई हैं? मेरी अम्मी है। अच्छा, आप वालदा हैं? हाँ, मैं रहती हूँ इनके साथ में।
ससुराल वाले भी चाहते हैं कि औलाद नहीं है, इसका कोई हक नहीं बनता रहने का, ना कानूनी ना शरीयत का। तो हम जैसे इंसान कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं? क्या ससुराल वाले रखने को तैयार नहीं है? नहीं नहीं, वैसे तो अच्छे हैं। अच्छे है ना? देवर इसका सही है। अच्छा। हाँ, वो चाहता कि नहीं रहने दो, हमारा क्या ले रही, बेचारी पड़ी है, जब तक की जिंदगी है कोई साथ में थोड़ी लेके चली जाएंगी। जवान बच्ची है, अकेला। मेरे भी शौहर नहीं, हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे जब हमारे शौहर का इंतकाल हुआ। हमने मेहनत मजदूरी कर करके बच्चों को पाला। 4 बेटियां थी, 2 बेटे थे छोटे छोटे। अच्छा। सब अल्लाह ने वो सस्ता अल्लाह ताला ने टाइम गुजार दिया, सबकी शादियां कर दी। पहले 2 बेटियों की करी, फिर 1 बेटे की करी, फिर 2 बेटियों की करी, जब 1 बेटे की करी, अब अपना बस अल्लाह है हाफिज। सभी महल्ले वाले कुछ न कुछ भिजवा देते हैं। मोहल्ले वाले कुछ भिजवा देते हैं। मैं भी आपसे पूछती हूँ कि आप क्या काम करती हैं, किस तरह अपनी आप कफालत करती रहीं। ख़वातीन हज़रात, आइए इनके इस हवाले से पैकेज देखते हैं एक नज़र। इनका पैकेज क्या हमें दिखाता है। इलाही रहम। पहले जो सिलाई लाई होती थी अब तो वो भी खत्म हो गई। शाहीन साहिबा के शौहर का 4 साल पहले इंतकाल क्या हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। आवाज़ नहीं। इलाज से शौहर तो ना बच सका, आवाज़ नहीं। पर घर का सब कुछ बिक गया। मेरी अम्मी मेरे साथ नहीं रहती है, मेरी कोई औलाद भी नहीं थी। मेरी शायद ये सही हो जाएंगे और कमा लेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिंदगी गुजारने के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी है, पर शाहीन साहिबा के पास पैसा आए भी तो कैसे। मुखय्यर हजरात मदद कर देते हैं तो दाल रोटी का इंतजाम हो जाता है। अब देखना यह है कि शाहीन साहिबा के लिए किसके दिल में दर्द का एहसास जागता है, क्योंकि दिल में किसी का दर्द ही एहसास इश्क है। आप क्या करती हैं शाहीन बाजी, क्या करना जानती हैं काम के हवाले से? अब जिनकी हम सिलाई करते थे ना, वो भी चले गए हमारे मोहल्ले से। जिनके लिए सिलाई करती थी वो चली गई? वो चले गए जो माल सिलाई देते अच्छी जानती हैं आप? हाँ, रेडीमेड सूट सीती थी मैं। कैसे दीदी? रेडीमेड। अच्छा। मर्दाने नहीं होते, मर्दाने सूट सीती? सलवार कमीज। अच्छा, सी लेती हैं। एक सूट सीने में कितना टाइम लगता है आपको? वो एक सूट नहीं सिलवाते थे, जैसे दर्जन का हिसाब होता था। नहीं, वैसे कितना टाइम लगता है आपको, ताकि किसी ने अगर ऑर्डर देना हो, दर्जन देना हो, तो आप कितने दिन में सी देंगी? कितने दिन में क्या, आधे दिन से पहले ही सिल जाएगा। आधे दिन से पहले ही सिल जाएगा। 1 दर्जन जोड़े? नहीं, 1 दर्जन तो शाम। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। 1 दर्जन किसी ने सिलवाना हो, बिल फर्ज मेरी टीम में बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, उनके लिए सिलवाना हो मुझे, उनके लिए अक्सर कपड़े मंगवाती हूँ। अगर फर्ज करें मुझे आपसे सिलवाने हो, आप कितने अरसे में टाइम में सी देंगी वो कुर्ते? रेडीमेड होता था ना, ये ऐसे पहनने वाले फैंसी नहीं होते थे, जैसे रेडीमेड होते थे। क्या होते थे? जैसे मलमल के कुर्ते नहीं होते, व्हाइट सलवारें, व्हाइट कुर्ते, हाँ हाँ, कलियों वाले, जी जी, सादे। सही है, वो सीती थी। अच्छा, तो कितने टाइम में सीती हैं आपको याद नहीं? वो तो मैं 4-4 दर्जन सी लेती थी। 400 दर्जन सी लेती थी। कितने टाइम में सीखती थी 1 दर्जन में, ये सवाल कर रही हूँ। 1 दर्जन? हाँ, 1 दर्जन 2 घंटे में ज्यादा से ज्यादा सिल जाता था। 2 घंटे में 1 दर्जन? जी। पैजामा नहीं हुआ माशाल्लाह, आप किसी ने की? पैजामा बचपन से वालिद नहीं थे ना हमारे, तो अम्मी के साथ भी सिलाई करती थी मैं। सिर्फ कुर्तियां आप जो हैं सी देंगी? हाँ, सब। 2 घंटे में तकरीबन 12 कुर्ते? हाँ, 12 कुर्ते। अच्छा, कपड़ा हमें देना होगा या आप खुद लेंगी? नहीं, वो कटे कटाए देते थे। अच्छा, कपड़ा कटे कटाए देते हाँ, थे। उन्हीं अच्छा, का होता था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका नंबर चल रहा है ऑन स्क्रीन। ख़वातीन हज़रात, अगर आप समझते हैं शाहीन बाजी के हवाले से आप इनकी मदद कर सकते हैं, या किसी भी इनको काम दिलवाने में इनकी मदद कर सकते हैं, या माली इमदाद कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ इनका नंबर ऑन एयर चल रहा है, ये यहाँ पर तशरीफ़ रखे हुए हैं। हम अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे। नमाज याद तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। वक्फे के बाद हम जाएंगे अपने तैलो की किचन में, और हमारी वो 2 बहनें जो करेंगी कुकिंग का कंपटीशन करशी जामे शीरी के किचन में। साथ साथ पहले बच्चों का, जो हमारे बच्चे हैं छोटे, उनका पहला रोज़ा, हॉलिस की तरफ से उनको क्या क्या मिल रहा है, उनकी फैमिली पोर्ट्रेट और बहुत सी बातें डॉक्टर उम्मे राहील के साथ। इस वक्फे के बाद हम हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा।